प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। 4 साहिबजादों की शहादत की याद में संत मेला सिंह दस्तकारी आश्रम विज्ञान जम्मू में वीरवार दिवस का किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल इस मौके पर रहेंगे मुख्य तौर से उपस्थित। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के एक सांसद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की और कहा कि ऐसी हरकतें पार्टी में अनावश्यक आंतरिक कलह पैदा करती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए वीर ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अपमान करने पर गृह मंत्री से तत्काल इस्तीफा मांगा और भाजपा का लक्ष्य संविधान बदलना बताया। बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज अमित शाह के खिलाफ विभिन्न पार्टी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। अखिल जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति द्वारा आज जम्मू के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि अखिल जम्मू कश्मीर सिख समन्वय समिति 26/12/2024 को गुरुद्वारा साहिब संत मेला सिंह दस्तकारी आश्रम डिगियाना जम्मू में 4 साहिबजादों की याद में एक धार्मिक समारोह का आयोजन करने जा रही है, जो शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक चलेगा, जिसे भारत सरकार और पूरे देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मौके पर मुख्य तौर से उपस्थित रहेंगे। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਲ ਵੀਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ महंत ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। महंत ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ महंत ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਡਿਗਿਆਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਉਹ ਡਿਗਿਆਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਔਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ महंत ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और हजरतबल से विधायक सलमान अली सागर ने आज पार्टी के ही सांसद आगा रहुल्ला के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन पर गहरी निराशा व्यक्त की। सोमवार को हुआ ये विरोध प्रदर्शन आरक्षण नीति से संबंधित छात्रों की शिकायतों पर केंद्रित था। हालांकि इस कदम से पार्टी के भीतर आंतरिक कलह भड़क गई है, क्योंकि इसे पार्टी के मानदंडों और अनुशासन की अवहेलना के रूप में देखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय नवाय सुबह में आज एक पत्रकारों से बात करते हुए सलमान ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक पहल नहीं थी और कहा कि पार्टी ऐसे मामलों को संबोधित करते समय संरक्षित दृष्टिकोण का पालन करती है। सलमान ने इस तरह की कार्रवाइयों से पार्टी की विश्वसनीयता और एकता को होने वाले नुकसान के बारे में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी पार्टी है और छोटी मोटी घटनाएं या गंदी राजनीति हमें प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां अनावश्यक आंतरिक कलह पैदा जरूर करती हैं और हमें विश्वास है कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में आरक्षण नीति के जरिए ओपन मेरिट कैटेगरी की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। आगा साहब एमपी हैं और उनको लगता है कि एज एमपी वो कर सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का डायरेक्टिव आता है लीडरशिप से। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कुछ बोलेंगे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोटेस्ट करती है। उमर साहब वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ बोलेंगे तब प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से हिदायत आएंगे, अगर उनको प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है तो तब हिदायत प्रोटेस्ट तब होगा। ऐसे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा उनका, एंड मे बी एज एमपी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफों का प्रोटेस्ट था। ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक एमपी भी उसमें थे जो चाहते थे, जो उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदत कह रहे हैं अपने साथी को रकीब कह नहीं, हमारे रकीब जो पीडीपी है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं उसको बुरा बनाते हैं, तो वहां तो वही सब थे। तो आप ही के बंधु ने उनको मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी, उनको बहुत सा देखना चाहिए था। बहुत से तरीके थे इन चीजों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में रीएड्रेस करना था इनके ग्रीवेंस को तो और अच्छे तरीके थे, लेकिन ये जो कल हो गया ये मुझे लगता है, मेरी जाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फायदा नहीं हो उसमें। हम मजाक कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, लोग अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे। लोग जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी मीर ने आज पत्रकार वार्ता की और कहा कि भाजपा ने पहले कहा था कि अगर उन्हें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीटें मिलेंगी तो वे संविधान बदल देंगे, लेकिन लोगों ने उन्हें 240 सीटों तक ही सीमित कर दिया। वे अपनी सरकार भी नहीं बना पाए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में संसद में हाल ही में दिए गए बयान पर गृह मंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमित शाह को गृह मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये एक नेशनल इशू को लेकर यहाँ पर एज पर AICC डायरेक्टिव ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हो रहा है। इससे पहले लगातार 22, 23 और आज तीसरा दिन है, तो देश के तमाम हेडक्वार्टर्स पर तो है ही, मगर बाकी जिला हेडक्वार्टर्स पर भी पिछले 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, मार्चेस हो रहे हैं और मेमोरेंडम सबमिट किए जा रहे हैं जो राष्ट्रपति के लिए हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। और आप सब जानते हो कि लगातार कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि जो हमारा आईन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की उनकी नीयत भी है और उनका टारगेट भी है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, अभी जनरल लोकसभा इलेक्शन हुए और तमाम देश ने सुना कि जब बीजेपी के लोगों ने खुलेआम कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें देश का आईन बदलना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, तो उसके लिए उन्होंने 400 सीटों का टारगेट लेकर चले थे
और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बदलना था, उसमें उनको एलर्जी क्या है? वो एलर्जी ये है कि इस आईन ने हमारे पसमानदा लोगों को, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को कुछ रियायत दिए हैं ताकि वो भी बाकी समाज के साथ आगे बढ़े। वो जो कंसेशंस है, वो जो रिजर्वेशंस है, वो खत्म करने के टारगेट से वो जब और कोई रास्ता नहीं लगा तो इसलिए टारगेट उन्होंने किया कि हमें 400 सीटें मिले और 2/3 मेजॉरिटी के साथ में, तभी हम इस काबिल होंगे कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है इस देश को, उनके साथ एक टीम ने दिया है, उसको कैसे बदल दें। तो थैंक गॉड देश समझ गया, पब्लिक समझ गया, 140 करोड़ लोग समझ गए उनकी नीयत को। भीम क्रांति सेना ने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगने को कहा और कहा कि यदि वे माफी नहीं मांगते तो उन्हें अपने पद पर विराजमान रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब तेरी सोच पे नारा देंगे ठोक के, बाबा साहब तेरी सोच पे नारा देंगे ठोक के। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। मेरा नाम गौरव है। आज अंबेडकर चौक में जिस तरह से सभी जम्मू के जितने भी एससी समाज के और जितने भी बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं अंबेडकर चौक में आए हैं और अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब का नाम अंबेडकर 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 जिस तरह से उन्होंने बोला, जिस पार्लियामेंट में वो बैठे हुए हैं एक संवैधानिक तौर से उन्होंने उसी बाबा साहब का जो नाम है उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, जिस पर एससी समाज के बाबा साहब के जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनकी ये मांग है कि वो माफी मांगे, अन्यथा वो अपने पद से इस्तीफा दें। इंदिरा पब्लिक स्कूल आरएसपुरा की तरफ से स्कूल का वार्षिक दिवस तथा सम्मानित समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आरएसपुरा जम्मू दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा एसडीपीओ आरएसपुरा निखिल गोगना तथा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ भूषण लाल डोगरा भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि की तरफ से दीप जलाकर तथा सरस्वती वंदना के साथ शुरू की गई। इसके उपरांत विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा गया। शहीदों की याद में आज बारामूला में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस द्वारा शहीद मेमोरियल T20 नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन सोपोर में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी बारामूला मफजूद उल जमान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। सर एक एक करके सभी को सम्मानित करें। मैं माफी आप सम्मानित करेंगे आपके लिए सर हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट अनाउंसमेंट करूंगा। विभूति राजपूत, विभूति राजपूत नाम का बच्ची का प्राइज है वो मंच पे आ जाए और अपने हाथों से समृद्धि चंद प्रदान किया है उनका सम्मान करेंगे। चेयरमैन सर पेरेंट्स स्टूडेंट्स सब लोगों का मैं अपने स्टाफ की तरफ से यहाँ पे एनुअल डे है और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा रवि जी का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि एनुअल डे पे बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर मैं ये ओकेजन ग्रेस कर पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, मीडिया कर्मी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमूमन तौर पे एनुअल डे जो आइटम उन्होंने पेश की बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने बच्चे और मैडम को कह रहा था कि भाई आपकी पूरा इशारा बच्चे समझ गए, आपके इशारे के ऊपर पूरा बड़ा अच्छा लग रहे थे। इस स्कूल के प्रिंसिपल और उनका जो स्टाफ है और मैनेजमेंट है, एक ही आइटम से लगता है कि बड़ा डिसिप्लिन और बड़ा हाई क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे रहे।
जिस तरह आज रियासी नगर परिषद रियासी व रियासी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की, जिसमें अवैध रूप से लगी रेहड़ियों को हटाया गया। इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन मात्र कुछ घंटे के भीतर ही स्थिति पुरानी जैसी हो जाती है। वहीं पुलिस ने भी मिलकर इस अभियान को कामयाब बनाया और पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 50 गाड़ियों को जब्त किया है और चालान भी काटे गए। इसमें 2 पहिया, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। ड्राइव जो है वो रियासी टाउन में चलाई गई है। आज ये जो जॉइंट ड्राइव है इसका मकसद था कि रियासी का जो टाउन है वहाँ काफ़ी कंजेशन हो चुकी थी, ट्रैफिक जाम जो है वो लग रहा था, तो उसी के चलते आज ये ड्राइव चलाई गई है। इस ड्राइव में जो हमारे साथ म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट है उसको हमने साथ रखा है, जो तहसीलदार हैं उनको हमने अपने साथ रखा हुआ है। हमारा आज का जो मोटिव था कि जहाँ जहाँ पे डिकंजेशन होती है, जहाँ जहाँ पे बसेस वगैरह जो ठीक तरीके से नहीं लगती है, रेडियो जो है वो ठीक तरीके से नहीं लगती है, आज इनको जो है काउंसिल किया गया है, बताया गया है कि आपने किस तरह से जो है अपनी गाड़ियों को पार्क करना है। अगर नहीं ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्या मान के चलें, ये अभियान लगातार चलता रहा, क्योंकि हमें देखा गया कि एक तरफ आप कार्रवाई करते हैं, दूसरे कुछ ही घंटों के भीतर वही स्थिति हो जाती है, तो क्या इस पर नज़र रहेगी आपकी? देखिए, ये जो ड्राइव है ये लगातार चलती रहेगी। जितने भी मतलब हम चाहते हैं कि रियासी टाउन जितना भी है वो बिल्कुल ट्रैफिक जो है फ्री रहे, बिल्कुल कंजेशन ना हो। जो रेडियाँ हैं वो अपनी जगह पे लगें, मेट्रो बसेस अपनी जगह पे लगें, रास्ते में ब्रेक ना मारें। इवन कि हमने जो ड्राइवर्स हैं उनकी काउंसलिंग भी की है कि वो रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है वो ना करें, सीट बेल्ट पहन के चलाएं, ओवरलोडिंग जो है वो ना करें। इसके साथ साथ हमने जो है वो एक्शन भी लिया गया है, जो कि जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहनी थी उनके खिलाफ, जिन सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तकरीबन 50 गाड़ियों के खिलाफ हमने ये एक्शन भी लिया है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एसडीपीओ के 75% पद पर्यवेक्षकों के लिए आरक्षित हैं, जो इस पद के लिए फीडिंग कैडर है। ये आवश्यक है कि एसडीपीओ के लिए चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता के आधार पर हो, जिसमें उम्मीदवारों के कौशल और अनुभव को ध्यान में रखा जाए। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव और समाज कल्याण के आयुक्त सचिव से इस मामले में हस्तक्षेप करने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि वरिष्ठतम पर्यवेक्षकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। आपने कई बार देखा होगा कि हम सड़कों पे भी थे। अब इस चीज को जरा मैं समझाना चाहूंगी आपकी वसादत से कि ये आप देख रहे हैं सीनियरिटी लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स है, और इसमें आप देखेंगे कि मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं, उनका रिक्रूटमेंट 1980s में हुआ है, 1980s में हुआ है, और आज वो किस्मत से लुक आफ्टर सीडीपीओ है। बहुत बड़ी बात है। और एट द सेम टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि अब क्या करने जा रहे हैं। 2017 के टीएसडब्ल्यू को परमानेंट सीडीपीओ बनाया जाना है, और उसके लिए डीपीसी के लिए बहुत सारी कम्युनिकेशंस हमारे डिपार्टमेंट से आई हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इन डीपीसी को कंडक्ट किया जाए, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है। तो इस सब को देखने के बावजूद हमने 2013 से एक स्ट्रगल चलाई है, और उस स्ट्रगल का मकसद यही है कि हम कोर्ट में गए। हमने कोर्ट में स्टेज लाए, हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट के भी स्टेज है, अंजुम गनाई वर्सेस स्टेट का, हमारे पास राजेश वर्सेस स्टेट है, हमने ट्रिब्यूनल से लाया है, और लेटेस्ट हमने पूनम शर्मा वर्सेस स्टेट जो है ये स्टे लाया हुआ है। इन अशोक देव वर्सेस स्टे हमारे पास है। तो आज हम कॉल फॉर जस्टिस है क्रक्स में। क्यों? क्योंकि अब जबकि इतने स्टेज होने के बावजूद भी प्रोसेस हो रही है, पीएससी फाइल भेज दी जा रही है, पीएससी को लिखा जा रहा है, पीएससी को भी हमने टाइम टू टाइम अभी कुछ कम्युनिकेशन शेयर की है कि इसमें ऑलरेडी स्टेज है। आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक अहमद डार ने आज कहा कि आर्म रेसलिंग से जुड़ा बड़ा आयोजन 10 जनवरी को शुरू होगा और 2 दिन तक चलेगा, और इस आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के बच्चे भाग लेंगे। डार ने कहा कि इस पहल में बच्चों को नशे से दूर रहने में भी मदद मिलेगी। शिमली आर्म रेसलिंग के हवाले से जो चैंपियनशिप होने वाली है 10 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक, ये 2 दिन ये इवेंट चलेगा कश्मीर इंडोर स्टेडियम में, क्योंकि कम से कम 400 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, चाहे उधमपुर हो, चाहे कुटवा हो, चाहे रामबंद हो, चाहे रियासी हो, जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है मेरे ख्याल से वहाँ से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे आर्म रेसलिंग के हवाले से, जो इवेंट होने वाला है 10 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। क्योंकि मकसद है जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग का, जो मकसद है यही मकसद है, जो यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हुई ड्रग के हवाले से, हमारे बच्चे ड्रग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी ओपिनियन वहाँ से आती है एक्सपोर्टिव की तरफ से, उनका यही मशवरा होता है बच्चों को आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए,
क्योंकि सबसे बड़ा मकसद इसी का यही है, जो आर्म रेसलिंग होने वाली है, हमारे बच्चे आर्म रेसलिंग के साइड से रागिब होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के हवाले से हमारे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज होने चाहिए जम्मू कश्मीर के हवाले से, ताकि इस ड्रग के नासूर को हम ख़त्म कर सकते हैं। यही मकसद है जो जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग ने इवेंट स्टार्ट किया 10 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। ये इसका यही मकसद है, ताकि इस ड्रग को, जो ये ड्रग का नासूर है पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस ड्रग को हम हरा सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के हवाले से। यही मकसद है आर्म रेसलिंग के हवाले से। आपके वसादत से मैं अपील कर रहा हूँ, जितने भी हमारे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, उनको आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में आप देखें हमारे बच्चे जो ड्रग के तरफ से रागिब है इस वक्त, मेरे ख्याल से ड्रग को लानत मारनी है, इस ड्रग को अवॉइड करना है। मेरे ख्याल से बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आर्म रेसलिंग के हवाले से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने बानीपुरा में हकबारा से चंद्रहीगीर सड़क का सफलतापूर्वक मैग्नामाइजेशन किया, जिसमें स्थानीय निवासियों को राहत मिली है। यह सड़क जो पहले जीर्ण अवस्था में थी, ग्रामीणों के लिए काफी परेशानी का कारण बन रही थी। स्थानीय लोगों ने इस सड़क पर किए गए अच्छे काम के लिए PMGSY विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है। जनाब नाव बहुत रोजान ये हकबारा 100% काम स्पेशल काम, यानी ये महकम यूत्या करान काम यूता मे PMG वुच यम बड़ ऑनेस्ट अत मज सारी नफर हेकान पकित ये पे यमो यह बनो PMG वालों तत पे मे बड़ यह सा शुक्र गुजार वजीर आजम सुंद यह अत नावस पे गसान यह वजीर आजम नावस पे गसान पज पे क्लियर काम अत कहीं बहा यह 100% काम तुम खुश आवाम तत खुश तमाम खुश। शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ मीर हकबारा कोसम बाग वन असल काम करान 2020 पे 2000 पे यम कर तथ तारीफ वारिया काम करमो असल सड़क बनायमो करमो वारिया असल सोचमुत यह काम क्या गथ मगर यह PNGM के जरिए यम तमिक काम गसा कार गई क्या गई ये तपोर तन इंशाल्लाह करा काम असल अमी आय गन पकन हर काम गन अमी आय क्या अगर यम काम करे हाथ पर करा 10% कि ये PMG स्कीम जो ये हर जगह लागू होनी चाहिए। जो R&B का काम है वो भी करते हैं, लेकिन इसमें इनके मॉनिटरिंग होती है 5 साल की। वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर उसमें मॉनिटरिंग करते हैं, तो उनको 5 साल की जिम्मेदारी रहती है। तो ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंस है। तो मैं कहता हूँ कि इनको ये देना चाहिए कि मैग्नामाइजेशन होता है, MRG होता है ना, तो इनका जो काम जो है ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ बूस्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाकी जो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें जो 4 साल का 5 साल का, तो वो दैट शुड बी गिवन टू द PMGS। I must along with all the people, you can ask the people, nobody will deny it. Good, with due dedication and devotion, we are satisfied and we want that this process should continue through PMGY. Okay. बारे में गुजारिश करूँगा कि मैं आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने तकलीफ की और यहाँ तक पहुँच गए। मैं तो गुजारिश करूँगा कि पहले मेरा इंट्रोडक्शन आपके साथ होना चाहिए। मैं अफजल गनी भट्ट नाइदखा का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का DDC चेयरमैन हूँ। मैं गुजारिश करूँगा 2000 से जो स्कीम चालू उसने की है उसमें बहुत सारी सड़कें जो कि मुफसलात में जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको कनेक्ट किया गया। इसमें ICP सड़कें हैं जहाँ बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं थी एक गांव से दूसरे गांव जाने की, या एक मुफसलात से दूसरे गाँव तक या मुफसलात तक जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो PMG ने पहले मरहले में उठाकर उन गाँवों की उन सड़कों को ज़ेर तामीर लाकर आज वो मुकम्मल हो रहे हैं। उसमें हकबारा, खोसबाग टू सफापोरा वगैरह, इसमें ये 2-4 सड़कें ऐसी हैं जो कि मेरे जहन में ये दस्ती आ गई हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।